अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, होप एवरीवन इज फाइन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, good to know. Thank you. So आप लोगों को रमज़ान भी मुबारक हो और अपना ख्याल रखें, स्पेशली जो कोरोना की सिचुएशन जा रही है, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, थोड़ा सा ख्याल रखें। Okay, so आज जो है हम थोड़ा सा जो है फिजिकल बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एनर्जी साइकिल एंड वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी रिगार्डिंग दी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं। सो टुडे आवर लेक्चर इज मोस्टली फोकस्ड ऑन दी physical science basis. What is physics? Okay, so until now we have discussed about the IPCC assessment reports, and then we got some idea about the greenhouse gases, what are different natural and anthropogenic sources behind those greenhouse gases, and then we discussed about the instrumental record, where we discussed about the temperature change which is rising, northern hemisphere snow cover retreat, and the third instrumental record we discussed about the sea level rise due to the global warming and also the glacier melt. In addition, we discussed about the paleo record, and then in last lecture we discussed about different scenarios which have been used in assessment report 5, like RCPs, representative concentration pathways. If you remember, RCP 2.6, RCP 4.5, 6 and 8.5. And then in last lecture we also discussed about the impact of those scenarios on various climatic factors like temperature or precipitation, and then we discussed about some impact assessment studies regarding those scenarios. That's all actually we have covered until now. And one important aspect which I forgot, we discussed about the climate models. What means by climate model, and what how climate models actually evolves from 1970 to onward now, and what is currently the resolution of those model, and what are the limitations or uncertainties involved in circulation models or in GCMs, or we can call it climate models outputs. And we discussed about the parameterization of subgrid scale phenomena. So that's all, almost we covered some introductory part and some of the scenarios regarding the climate change assessment reports. So now let's start with the uh, some important terminologies which actually we will use frequently in this during this course, and you are well aware of these terminologies. So actually I want to uh, discuss with you these terminology. First one is the energy. So can anyone tell me how can we define energy? Sir, the ability to do work is called energy.
Yes, very good, excellent. So energy is the ability to do work on a matter. And how about the potential and kinetic energy? सर इक्वेशंस का भी पता है और एक मूविंग फॉर्म में होती है और एक ड्यू टू ग्रेविटी उसमें कुछ उसमें वर्च्यू होती है उस एनर्जी की Height. Okay, any other definition? So potential energy is gained when the position is changed due to height, and kinetic energy is due to the motion of the object. Okay, very good. So ये basically बहुत basic terminologies हैं जो हम frequently जो है I think 6th or 7th class से ये आप लोग पढ़ते हैं. So potential energy is the energy due to the position of any object, and kinetic energy is due to the motion of the object. Okay, how can we define the temperature then? How can we define temperature? So it's very simple term. ये तो मेरे ख्याल से आप maybe 4th 5th class से पढ़े हैं. What is temperature? Google Sir, नहीं the करना. degree of hotness or coldness of body, sir. Yeah. So Google नहीं करना. जब मैंने इंटरेक्टिव क्लास रखनी है तो आपने गूगल करके जो है ना डेफिनेशन नहीं, बल्कि जो आपका बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ ये जो इंटरेक्टिव सेशन है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है. वट एवर यू थिंक अबाउट दीज टर्म्स तो वो गूगल करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा है. वो बाद में बेशक गूगल करें, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है यू हैव टू एक्सप्रेस. ओके, सो टेम्परेचर इज the degree of hotness or coldness, or we can also call it as a average kinetic energy level of any substance or matter. जो average kinetic energy है उसको भी हम temperature कहते हैं. How about heat or thermal energy? So no idea. So heat or thermal energy is actually the total energy which is associated with the random atomic or molecular motions of any substance. कि उसमें जितने भी random atomic या molecular motion है उनके regarding जो energy है उसको हम heat कहते हैं या thermal energy कहते हैं. So another important term is thermal conductivity. So any idea about that term, thermal conductivity? So the ease with which heat energy passes from one object to another. So not ease, it is the ability of any material to conduct heat. Okay, metal है जिस तरह metal में जो है वो heat transfer जल्दी होती है as compared to wood. Wood की जो है thermal conductivity low है. So heat transfer occurs at a lower rate. It means in a material of low thermal conductivity than in a material of high thermal conductivity like metal. Okay, ये term हमने कुछ देख ली. Now the question arises: how heat transfer takes place? कौन से processes involve हैं heat transfer में? So vibrations. Conduction, convection, radiation, sir. Oh, अच्छा. Right. Okay, very good, excellent. So you talked about convection, और इसके अलावा आपने कंडक्शन की टर्म यूज किया जिसमें जो वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दैट इज रिगार्डिंग द कंडक्शन. कन्वेक्शन आ गई और थर्ड आपने प्रोसेस बताया इंपॉर्टेंट दैट इज रेडिएशन. So heat transfer can be grouped into three broad categories: conduction, convection and radiation. So क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में?
Can anyone tell? Sir, movement through solid, liquid and gas, sir. कंडक्शन जो है तो मतलब कंडक्टिविटी होती है इन सॉलिड्स और कन्वेक्शन इन फ्लूइड फॉर्म और रेडिएशन इन गैस फॉर्म। जी कुछ हाफली आपने कुछ ठीक चीजें बताई हैं। एनी अदर डेफिनेशन और डिफरेंस ऑफ दीज थ्री टर्म्स? जी, what is conduction? So conduction is actually heat transfer due to molecular collision. ठीक है, molecular collision जो random movement है, उस collision से जो है वो heat जो है transfer होती है. However, in convection, actually whenever the fluid like air or liquid is heated up, so it gets warm. So it gets warms. तो जब वो वार्म हो जाता है तो इट मीन्स इट कैरीज थर्मल एनर्जी विद इट. एंड एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस कोर्स कि जब वार्म एयर हो जाएगी या वार्म लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इट इज लेस डेंसर, लाइटर वेट है देन दी कोल्ड एयर और कोल्ड लिक्विड. तो क्या होगा, वो वार्म जो फ्लूइड है इट विल राइज, ऐसे ही. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. उसकी सिंपल सी एग्जांपल बॉइलिंग वाटर. केटल के अंदर बॉइलिंग वाटर है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बॉयल होना शुरू होता है, तो क्या होता है, नीचे वाली सरफेस के ऊपर जो वार्म वाटर होता है वो ऊपर आता है और जो ऊपर वाला रिलेटिवली कोल्ड होता है वो नीचे की तरफ जाता है. तो बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. Okay, how about radiation? Radiation को कैसे define करेंगे? What is radiation? Sir, heat transfer through electron. Sorry, आपकी जो है आवाज जो है वो क्लियर नहीं आई. Sir, heat transfer through electromagnetic radiation. Sir. Waves. Yes, electromagnetic radiation है. Basically, it is the emission or transmission of energy in the forms of waves. ठीक है, और ये in the form of wave या particle होती है through a space और through a material, any material. तो अगर हम जो है वो बात करें सन की, ठीक है, तो सन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रही होती है. एक्सक्यूज मी. तो रेडिएशन जो है वो शॉर्ट वेव भी हैं, लॉन्ग वेव भी हैं. शॉर्ट वेव में जो है अगर हम बात करें तो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है उसमें हम कहते हैं ऑलमोस्ट जो है ये नियर टू विजिबल रेंज है, या नियर अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, नियर इंफ्रारेड. तो इनका ऑलमोस्ट जो रेडिएशन की रेंज है शॉर्ट वेव रेडिएशन की, इट इज़ फ्रॉम 0.1 टू ऑलमोस्ट 5 माइक्रोमीटर. होएवर अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करें जो कि अर्थ सरफेस से एमिट होती हैं इन द एटमॉस्फेयर, सन से सोलर रेडिएशन जो है शॉर्ट वेव आ रही हैं और अर्थ सरफेस से जो है ये आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है. तो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है ऑलमोस्ट ये इनकी वेवलेंथ जो है 3 से 100 माइक्रोमीटर की होती है. तो ये सब की सब रेडिएशन है. तो बेसिकली ये तीन प्रोसेसेस हैं जो कि रियली इंपॉर्टेंट हैं हीट ट्रांसफर के लिए, और इन्हीं तीनों प्रोसेसेस की बेसिस के ऊपर ही जितना भी आपका वाटर साइकिल है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो डिपेंडेंट है.
और इन तीनों प्रोसेस से जो है बेसिकली पहले तो एनर्जी साइकिल आएगा और एनर्जी साइकिल के डिपेंडेंट वाटर साइकिल है। और ब्रॉड टर्म में जो है क्लाइमेटोलॉजिस्ट या एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एनर्जी साइकिल इज इक्वल टू वाटर साइकिल। एनर्जी आएगी तो वाटर साइकिल में भी जितनी वाटर एनर्जी साइकिल में वेरिएबिलिटी होगी उसी तरह वाटर साइकिल में वेरिएबिलिटी होगी। और तीन ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं हीट ट्रांसफर के लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो लेट्स डिस्कस these three terms in डिटेल। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसके ऊपर हमने वाटर कैटर रखी हुई है, उसमें ठीक है वाटर है। तो रेडिएशन जो है थर्मल रेडिएशन वो सबसे पहले जो है कैटल को, उसके बॉटम को थोड़ी सी हीट ट्रांसफर करेगी, ऐसे ही है। तो जब उसके साथ कांटेक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वार्म होंगे तो एज अर्लियर सेड के वो लाइटर वेट होगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आएंगे, तो कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस जो है जो आप देख रहे हैं कंडक्शन के, ड्यू टू दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वो जो है जो हैंडल है उसमें भी जो है कुछ ना कुछ हीट जो है वो ट्रांसफर होगी थ्रू दी मॉलिक्यूलर कोलिजन ऑफ द कंडक्टिव मटेरियल। सो ये तीन प्रोसेसेस जो हैं बेसिकली इस डायग्राम में आपको क्लियर हो गए। सो कंडक्शन में जो है जैसा कि बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ हीट वाया डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कोलिजन। In the conduction process, an area of greater kinetic energy will transfer thermal energy to an area with lower kinetic energy। यानी कि ग्रेडियंट उसका यही होगा कि काइनेटिक एनर्जी जहाँ ज़्यादा है वो लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। एंड कंडक्शन इज एक्चुअली मोस्ट कॉमनली it is most common form of heat transfer which actually needs physical contact। अगर physical contact नहीं होगा तो heat transfer नहीं होगी। जैसा कि इलेक्ट्रिक केटल की एग्जांपल थी, वो बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो जो हैंडल है तो वो हैंडल का जो है वो मेटल के साथ फिजिकल कंटैक्ट है तो हीट ट्रांसफर हो रही है मेटल से वो जो उसका वुडन हैंडल है या प्लास्टिक हैंडल है व्हाटएवर। तो कंडक्शन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट, मींस वो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्रेडियंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट टेम्परेचर और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है उसके डिपेंडेंट है। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल मींस उसका कितना जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मटेरियल का आपस में इन कांटेक्ट है फिजिकली। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेवल पाथ एंड लास्ट वन इज द फिजिकल मटेरियल प्रॉपर्टी के उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है उस मटेरियल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन डिटरमिन, सो यहाँ जो है बेसिकली कुछ मिस हो गया पार्ट। सो फिजिकल properties determine which material transfer heat better than other, it's obvious। और उसके रिगार्डिंग जो है हम हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया जो है इस इक्वेशन से डिटरमिन कर सकते हैं जिसमें Q जो है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, K is the thermal conductivity of the material, A is the heat transfer area, T hot is the temperature of hot region and T cold is temperature of cold region, while D is the thickness of the barrier। अगर हम वो वाटर कैटल की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग वाटर है तो वाटर और जो हैंडल है उसके दरमियान जो बेसिकली बैरियर है दैट इज मेटल, जो कैटल की मेटल
थिकनेस है. तो यूजिंग दैट इक्वेशन, सो वी कैन डिटरमिन द हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम थ्रू एनी काइंड ऑफ मटेरियल. ये तो कंडक्शन के लिए होगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन. As earlier said, when a fluid like air or liquid is heated, then it travels away from the source because of its less weight. And this type of heat transfer through rise of the warm fluid is called convection. और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ये आपके सामने जो है हीटर है, स्पेस हीटर. तो स्पेस हीटर जो है ये बेसिकली इसमें क्या है कि इसके इर्द गिर्द जो बेसिकली एयर होती है, सो जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो वो एयर जो है वो वार्म होती है. तो जैसे ही वो एयर वार्म होती है, बिकॉज इट्स वेट इज लेस एज कंपेयर टू दी अपर एयर, ठीक है, उसका ज़्यादा कम वेट है, तो क्या होगी, वो वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी और जो बाकी रूम के अंदर जो एयर है उसके ऊपर है, वो कोल्ड एयर जो है वो डेंसर होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी. तो वो फिर जो कोल्ड एयर हीटर की तरफ आएगी वो फिर वार्म होगी. तो पूरा एक जो है ये सर्कुलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड convection. So convective rate we can determine using the equation as displayed, where Q is heat transfer per unit time, A is the heat transfer area of the surface, Ts is the temperature of the surface जो अगर हम हीटर की बात कर रहे हैं, and Tf is the temperature of the fluid अगर हम हीटर की बात करें तो हीटर के केस में fluid is air. While Hc is convective heat transfer coefficient is defined as the rate of heat transfer between a solid surface and a fluid, जो कि हम बात कर रहे हैं एयर की, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है बेसिकली ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. However, the convective heat transfer coefficient is dependent upon the physical properties of the fluid and the physical situation, जो कि हम हीटर की बात कर रहे हैं. Okay, so third term is radiation. So thermal radiation, if we talk about the thermal radiation, so thermal radiation generates from emission of electromagnetic waves, and these waves actually carry the energy away from the emitting object. अगर हम सन की बात करें तो सन से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होती है और वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रही होती है. So radiation actually occurs through a vacuum or any transparent medium, either solid or fluid. And thermal radiation is the direct result of random movements of atoms and molecules in a matter. अगर हम सन की बात करें तो सन में जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हम न्यूक्लिएशन प्रोसेस कहते हैं. उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. और जो सोलर एनर्जी है उसको फिर सोलर सेल, ये एक जस्ट एग्जांपल है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सोलर सेल के ऊपर जो है जब वो पहुंचते हैं
तो उसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स द एनर्जी, ठीक है, या वो उसमें हीट भी होती है, तो उस रेडिएशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी. So thermal radiation is calculated by using Stefan-Boltzmann law, where P is net radiated energy, A is the radiating area, TR is the temperature of the radiator. अगर हम sun की बात करें, TC is the temperature of the surrounding. एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सन और एटमॉस्फेयर ले रहे हैं. E is the emissivity. So emissivity is the effectiveness of any object in emitting energy as thermal radiation. And sigma is Stefan-Boltzmann constant, जिसकी constant की value given है watt per square meter per Kelvin की raised to power 4. तो बेसिकली जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में अगर देखें, जो नेट रेडिएशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो भी सरफेस की टेम्परेचर है और रेडिएटर का टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के, लेकिन उसकी 4th पावर से जो है नेट रेडिएशन जो है वो एमिट होती है किसी भी मटेरियल से. ओके सर, जी जी सर एक सवाल था कि सर हमने रेडिएशन में एज एन एनर्जी क्यों नहीं किया, सर पावर के क्यों यूनिट्स में किया सर? मींस पावर में हम क्यों कर रहे हैं, बजाय अगर हम लोग एनर्जी में कर ले तो आसान ना हो जाता सर समझने में? क्योंकि जो तीनों प्रोसेस हैं उनको अल्टीमेटली जो है वो या तो एनर्जी के यूनिट्स में ले लें या हीट के यूनिट्स में ले लें, ऐसे ही है ना. तो कंसिस्टेंट यूनिट्स लेने के लिए वो टेम्परेचर की बात की गई है तीनों के लिए, रेडिएशन में भी, कन्वेक्शन में भी और कंडक्शन में भी, ठीक है. एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि रेडिएशन ऑफ कोर्स हम जो है वो रेडिएशन जो है एनर्जी के यूनिट की बजाय किसी और यूनिट में भी ले सकते हैं, लेकिन जो है क्योंकि हमने जब एनर्जी साइकिल की बात करनी है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे जब एनर्जी साइकिल की बात करेंगे तो रेडिएशन जो है वो किसी भी रेडिएशन को किसी भी यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हाँ एनर्जी के केस में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो, या आप हीट यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें जो है वो कदगन कोई नहीं है. लेकिन स्पेशली जो है ये 3 इक्वेशंस जो आपको तीनों प्रोसेस में बताइए वो टेम्परेचर के रिलेटेड है, मीन हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. राइट सर, बिल्कुल. सो लेट्स डिस्कस रेडिएशन बजट्स, और जिसको हम एनर्जी साइकिल भी कहते हैं. सो इस फिगर में जो है बेसिकली 2 तरह के आपको कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर और रेड कलर. जो ब्लू कलर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन. तो जैसा कि मैंने बताया था कि सन से जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन विद द वेवलेंथ इनविजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड रेंज में जो है वो सन से एमिट होती है, जो कि अर्थ की तरफ आ रही होती है, और अर्थ के ऊपर सारी की सारी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब होता है, कुछ जो है वो बैक स्कैटर्ड हो जाता है बाय द एयर, कुछ जो है अब्जॉर्ब होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, और या वाटर वेपर में भी अब्जॉर्ब होती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन.
और कुछ शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्लाउड से आउटर स्पेस की तरफ। और जो कुछ कुछ जो सोलर रेडिएशन है वो डिफ्यूज भी होती है। वो डिफ्यूज कैसे होती है? वाटर वेपर से, या पर्टिकुलेट मटेरियल हैं या गैसेस हैं, इनमें अब्जॉर्ब भी होती हैं, लेकिन यहाँ से कुछ जो है डिफ्यूज होती हैं। डिफ्यूजन का मतलब है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाती हैं, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं रहती। तो कुछ सोलर रेडिएशन वाटर वेपर और गैसेस में अब्जॉर्ब होगी, कुछ डिफ्यूज होगी, और कुछ डिफ्यूजन का पार्ट भी जो है अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा होता है जो कि अब्जॉर्ब हो जाता है। However, on the right hand side of the figure, if we see the outgoing long wave radiation, तो अर्थ सरफेस के में जो शॉर्ट वेव रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई उसको एमिट भी होना है, या उसको हम कह सकते हैं कि उसको एमिट बैक होना है इनटू द एटमॉस्फेयर और स्पेस की तरफ अल्टीमेटली जाना है। तो जो अर्थ सरफेस में शॉर्ट वेव रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है वो अर्थ सरफेस से फिर एमिट बैक होती है इन द फॉर्म ऑफ आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। और ये जो एमिटेड आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसमें से कुछ जो है फिर क्लाउड्स, वाटर वेपर्स, ग्रीन हाउस गैसेज वो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, कुछ जो हैं क्लाउड्स भी ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, और कुछ जो हैं क्लाउड से एमिट हो जाती हैं आउटर स्पेस की तरफ, कुछ जो है अर्थ सरफेस से जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन वो आउटर स्पेस में डायरेक्टली जो है वो एस्केप हो जाती हैं। तो ये एक पूरा एनर्जी साइकिल बनता है। So let's discuss about the net radiation के net radiation फिर कैसे हम कैलकुलेट करें कि ग्लोबली जो है नेट रेडिएशन कितनी लेवल है। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको हम इंसोलेशन भी कहते हैं, इज ए सम ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ये वो वाली रेडिएशन है जो कि डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है। So direct solar radiation is the short wave radiation able to penetrate through the atmosphere without affected by the constituents within the atmosphere। के एटमॉस्फेयर में वो जितनी गैसेस हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, वाटर वेपर हैं, सो उन सब से पेनिट्रेट होके ये डायरेक्टली जो है अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, तो उनको हम कहते हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। while the diffuse solar radiation mean it is the short wave radiation that has been scattered by the gases, by the water vapors, और कुछ जो है ये डिफ्यूज रेडिएशन जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ पहुंच रही होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ सरफेस में अब्जॉर्ब होगी। तो इन दोनों का सम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया विद के। के इज इक्वल टू एस प्लस डी, और ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है। डाउनवर्ड मीन के अर्थ सरफेस की तरफ ही है। ओके, द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इस जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसमें से कुछ जो है अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। The amount of reflection is represented with K with upward arrow is equal to S plus D, जिसमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशन और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है विद A। A is representing albedo। So ये टर्म आपने सुनी है albedo कभी पहले? albedo, ALBEDO। So anyway,
So portion of the incoming solar radiation is absorbed by surface, जो कि ऊपर वाली टर्म है, and the remaining portion is reflected back, and the portion of the solar radiation which is reflected back from the earth surface, उसमें वो continental part भी है और साथ ही साथ oceanic part भी है. तो portion of the radiation which is reflected from the earth surface is called albedo. ओके, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है आप लोगों से ये है कि वाटर वर्सेस बेयर अर्थ सरफेस, कहाँ से आपको लगता है कि ज्यादा जो है रिफ्लेक्शन होगी, वाटर बॉडी से या बेयर अर्थ सरफेस से? सर वाटर बॉडी से. Any other answer or is it correct? I think sir कि अर्थ सरफेस है सर, I guess. उसकी एक वजह में ये कि क्योंकि सर जो वाटर बॉडी होती है सर वो रेडिएशन को जो अर्थ से सन से सोलर रेडिएशन आती है वो स्कैटर्ड हो जाती है इनटू द वाटर बॉडी, फिर से जब री इमिट होती है देन अगेन स्कैटर्ड हो जाती है, तो काफी ज्यादा उसमें रिडक्शन होती है. ओके, स्कैटरिंग जो है अर्थ सरफेस से नहीं बल्कि वो टर्म यूज की जाती है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस. एनीवे, अल्बीडो जो है वाटर की, अल्बीडो मींस के रिफ्लेक्शन है. वाटर बॉडी एक्ट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्या है ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि सारी की सारी जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी होती है या रेडिएशन होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है. However, the brighter surface like white surface, तो white जो है बेसिकली कलर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हमें वो व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है, क्योंकि सारे कलर जितने भी जो है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आईज की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए हमें वो वाइट ब्राइट सरफेस नजर आ रही होती है. वाइट जो जितनी ब्राइटर सरफेस होगी उतनी इसकी एल्बिडो हाई होगी. जस्ट लाइक स्नो, स्नो इज ए वाइट, ठीक है, सरफेस. तो स्नो जो है उसकी एल्बिडो जो है ऑलमोस्ट वो 90%, 80 to 90% है. कुछ अब्जॉर्प्शन होती है लेकिन 100% जो है रिफ्लेक्शन नहीं होती सोलर रेडिएशन की. तो वाटर बॉडी एक्ट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी. 100% तो ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन वाटर में जो है ऑलमोस्ट कहते हैं कि उसकी जो एल्बिडो है वो 5 to 10% है, यानी कि 90% तक, 80 to 90% जो है रेडिएशन वो वाटर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है. ओके, सो ये तो हो गया एल्बिडो. तो इनकमिंग रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का भी अगर हमें आइडिया हो और अमाउंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन का भी आइडिया हो, तो इसका मतलब है हम नट शॉर्टवेव रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज ए डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग शॉर्टवेव रेडिएशन, जो कि एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया. ये तो हो गया शॉर्टवेव रेडिएशन की स्टोरी. सिमिलरली फॉर long wave radiation, so net long wave radiation is the difference between incoming and outgoing long wave radiation. तो जो outgoing long wave radiation होती है उसमें से कुछ जो है absorb होने के बाद क्लाउड, वाटर वेपर या गैसेस में वो दोबारा जो है नीचे की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ भी आ रही होती है. तो इसका मतलब इनकमिंग भी होती है. इनकमिंग सोलर से नहीं आ रही बल्कि वो क्लाउड्स में, गैसेस में या वाटर जो वेपर्स हैं उनमें अब्जॉर्ब होने के बाद अर्थ सरफेस की तरफ आ रही होती है. तो नेट लॉन्ग वेव रेडिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. तो जब हमारे पास नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन भी है, नेट लॉन्ग वेव रेडिएशन भी है, इट मींस वी कैन कैलकुलेट नेट रेडिएशन.
So net radiation is the difference between incoming and outgoing components of short and long wave radiation, जो कि basically वो sum है net wave radiation और net long wave radiation का. सर जी सर एक सवाल आपने सर जिक्र किया कि द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स, फिर वो एमिट होते हैं. क्यों सर ये क्लाउड्स एंड पार्टिकल्स में सर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है? लॉन्ग वेव को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते? इट हैज टू एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब ही होके वापस री एमिट होते हैं सर. वो अब्जॉर्ब भी होते हैं, जो तो अब्जॉर्ब हो गए उसके अंदर अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है. कुछ जो हैं उसमें अब्जॉर्ब होने के बाद एस्केप भी हो जाते हैं आउटर स्पेस में, और कुछ जो हैं उस सरफेस में अब्जॉर्ब होने के बाद एमिट डाउनवर्ड होते हैं. रेडिएशन है ना, रेडिएशन ने कहीं ना तो कहीं जाना है, सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ अब्जॉर्ब होगी. अब्जॉर्प्शन के बाद एमिट डाउनवर्ड भी होगा और एस्केप टुवर्ड स्पेस भी होगा. तो यहाँ जो है बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता चलूं कि जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो जब अब्जॉर्ब करती है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को, तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होने के बाद वो डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आ रही होती है. तो दैट्स व्हाई अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. जो हम कहते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्या है, कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं रेडिएशन को, लॉन्ग वेव रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद वो अर्थ की तरफ एमिट बैक करते हैं. तो अर्थ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और साथ साथ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. आई होप यू गेट माय पॉइंट. यस सर बिल्कुल. ओके, तो अब ये नेट रेडिएशन जो है, जो कि है इनकमिंग और आउटगोइंग शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रेडिएशन का डिफरेंस. ये नेट रेडिएशन अगर हम कहते हैं कि ग्लोबली अगर पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब है उस नेट लॉन्ग वेव रेडिएशन ने कुछ ना कुछ तो काम करना है. इट हैज टू डू अ वर्क इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, के अर्थ जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ ये नेट रेडिएशन करेगी. तो नेट रेडिएशन क्या करती है? इट इज यूज्ड टू डू वर्क इन अर्थ सिस्टम इन 3 प्रोसेस. जो नेट रेडिएशन है वो 3 प्रोसेसेस में यूज होती है, जो कि H, Le और G लिखा गया है. H is representing the sensible heat. So sensible heat mean that energy which changes the, so that radiation which changes the temperature of the air, उसको हम सेंसेबल हीट कहते हैं और H से डिनोट करते हैं. तो नेट रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को चेंज करने में यूज हुआ, उसको सेंसिबल हीट कहते हैं. Le इज द सेंसिबल हीट, सॉरी Le इज लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट जो है इज दैट एनर्जी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर फेज चेंज ऑफ वाटर. फेज चेंज ऑफ वाटर कहां से होगा? कि जो वाटर बॉडी में रेडिएशन अब्सॉर्ब हुई, ठीक है, तो क्या होता है? वाटर वेपर इवेपोरेशन होती है वाटर बॉडी से. तो वो जो फेज चेंज हुई है वाटर से वाटर वेपर के लिए, तो वो जो एनर्जी यूज हुई है उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट. एंड थर्ड वन इज G. सो G जो है बेसिकली ये वो वाली एनर्जी है विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द सब सरफेस, मीन ग्राउंड. अर्थ की जो कोस्टल एरिया की ग्राउंड है उसका जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, सिर्फ सरफेस नहीं, उसके सरफेस के नीचे जो सब सरफेस है उसका टेम्परेचर चेंज कर रही है. तो नेट रेडिएशन का तीन काम आ गए नेट रेडिएशन के. या तो जो है वो चेंज करेगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, या वो फेज चेंज करेगा वाटर का फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर्स,
या ग्राउंड के अंदर अब्जॉर्ब होगी नेट रेडिएशन। तो जब ये ग्राउंड के अंदर अब्जॉर्ब भी होगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी चेंज करेगी नेट रेडिएशन, कुछ पार्ट उसका जो है वो फेज चेंज में यूज होगा, तो उसके बाद फेज चेंज होने के बाद कंडेंसेशन फिर प्रेसिपिटेशन। तो इसका मतलब है अर्थ सिस्टम में जब ये चेंजेस होंगी तो वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी होगी। इज इट ट्रू? यस बिल्कुल सर, ठीक है, कुछ सेंस बन रही है ना? बिल्कुल। ओके। Yes, sir. So principal use of available net radiation is to do work in Earth system. So latent heat, the phase change of water; sensible heat, the change of air temperature; and ground heat, change of subsurface temperature. So let's discuss couple of examples. Then you will be able to understand how this net radiation actually involves in Earth system. So first example is regarding the moist surface during daytime hours. Moist surface during daytime, ठीक है, हम सरफेस की बात कर रहे हैं अर्थ की, उसके अंदर मॉइस्चर भी है। तो नेट रेडिएशन विच इज क्यू स्टेर, सो क्यू स्टेरिक इज पॉजिटिव, नेट रेडिएशन पॉजिटिव होगी दिन के वक्त, दिन के वक्त नेट रेडिएशन पॉजिटिव होगी। और वो जो नेट रेडिएशन जो पॉजिटिव है वो कहां कहां यूज होगी? एल इज सेंसिबल हीट, सॉरी लेटेंट हीट, फेज चेंज ऑफ वाटर, के दिन के वक्त जो है इवेपोरेशन होगी। ऐसे ही है, अगर हम सॉइल की बात कर रहे हैं, वेजिटेशन नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर है, तो सॉइल मॉइस्चर जो है वो फेज चेंज इवेपोरेट होगा, तो लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होगी अर्थ से। और सेकेंडली एच इज चेंज इन, जो कि मैंने बताया था, टेम्परेचर ऑफ द एयर। और ये कैसे होगा? एनर्जी जो है बेसिकली, जो सरफेस का टेम्परेचर जब दिन के वक्त इंक्रीज होगा तो मॉइस्चर तो वेपोरेट हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर, लेकिन उसके साथ साथ जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर वाली जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो क्या होगी? वार्म होगी। इसको, इसकी एग्जांपल लें जस्ट लाइक वो हीटर वाली एग्जांपल, कि अर्थ सरफेस जो है वो हीटर है, ठीक है, अर्थ सरफेस हीट अप हुई सोलर रेडिएशन से, तो वो जब हीट हुई तो उसके ऊपर जो बिल्कुल नियर विसिनिटी में जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो वार्म हो गई, तो वो वार्म एयर किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, लिफ्ट होगी ना। तो इसका मतलब है डे आवर्स में नेट रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो सेंसेबल हीट, वो उसकी फॉर्म में टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करेगा। ओके, तो थर्ड पार्ट इज जी, इसका एरो जो है वो डाउनवर्ड है, तो कुछ नेट रेडिएशन का पार्ट जो है वो सब सरफेस टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली एक टिपिकल एग्जांपल है डे आवर्स में मॉइस्ट सरफेस के नेट रेडिएशन ने कौन कौन से काम किए। तीनों प्रोसेसेस में नेट रेडिएशन यूज हुई, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुई लेटेंट हीट के लिए भी, सेंसिबल हीट के लिए भी, और ग्राउंड हीट के लिए भी। होएवर ड्यूरिंग नाइट, चलें ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं? ये तो डे की मैंने बात की, ड्यूरिंग नाइट है मॉइस्ट सरफेस, ड्यूरिंग नाइट क्या होगा प्रोसेस? सब कुछ रिड्यूस ही हो जाएगा सर, लेटेंट हीट, एच, सेंसिबल हीट और ग्राउंड हीट सब। चलें लेट्स टॉक अबाउट नेट रेडिएशन ड्यूरिंग जो है
नाइट जो है नेट रेडिएशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगा? नहीं, नेगेटिव ही होगी सर, क्योंकि सर को ना लेटेंट हीट भी रिड्यूस होगा सर, सेंसिबल हीट भी रिड्यूस होगा, ग्राउंड भी सर बहुत कम होगा। सो व्हाट इज नेट रेडिएशन? नेट रेडिएशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इट इज द डिफरेंस ऑफ शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, इनकमिंग एंड आउटगोइंग शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या नाइट को शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा? नो, No, because there is no sun, no solar radiation. It means there is only outgoing long wave radiation during night hours. सर नेगेटिव होगा। So that's why Oh, net radiation is always negative during night time, and it is always positive during day hours अगर clear sky है, ठीक है? तो बेसिकली जो है नाइट आवर्स में क्या होगा, नेट रेडिएशन विल बी नेगेटिव, होएवर लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगी। ये कैसे होगा? और ग्राउंड से जो है हीट एनर्जी रिलीज होगी, ग्राउंड से जो है वो आप देख रहे हैं एरो अपवर्ड है, विच शोज के ग्राउंड से जो है हीट या एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए ग्राउंड सरफेस जो है, थोड़ा सा इसको फिजिकली देखें कि रात को या सुबह के वक्त हम देखें अगर ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर कम होता है, ऐसे ही है सब सरफेस का टेम्परेचर भी कम हुआ होगा दिन से, तो इसका मतलब है वो हीट जो है वो ग्राउंड से रिलीज हुई है एटमॉस्फेयर में। हाउ अबाउट द लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिगर में क्या हुआ है? सर मेरे ख्याल में सर कि जो ग्राउंड से सर हीट रिलीज हो गई, सो जो एयर अबव था वो सर ठंडा हो गया, तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया, और सर वाटर वेपर्स जो थे वो भी सर सॉइल और प्लांट्स पे वापस कंडेंस्ड होके सर वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो बेसिकली अंडर दीज सर्कमस्टांसेस सरफेस कूल्स ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। जो नेट रेडिएशन जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है ना, नेगेटिव है, तो सरफेस जब वो कूल होगी ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, देन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर टूवर्ड्स सरफेस। क्या होगा, एयर से हीट ट्रांसफर हुई सरफेस की तरफ, एयर का टेम्परेचर ज्यादा है और सरफेस का टेम्परेचर कम होगा नाइट को, तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस की तरफ, तो डाउनवर्ड एरो आ गया एच का, सेंसिबल हीट का। और लेटेंट हीट फ्लक्स का क्या हुआ, जो कि एग्जैक्टली आपने बताया मुझे कि बेसिकली जो है जब सरफेस कूल होगी, वो वाटर बॉडी है या जो है कॉन्टिनेंटल सरफेस है या एग्रीकल्चर सरफेस है, जो भी है कैनोपी जिस तरह की भी है सरफेस के ऊपर, जब वो कूल होगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर वो चेंज करेगा फेस, कंडेंस होके सरफेस के ऊपर, जो हम देखते हैं ड्यू फ्रॉस्ट देखते हैं ना, तो वो सरफेस के ऊपर कंडेंस हो गया। तो लेटेंट हीट जो है वो नेगेटिव, सॉरी वो ये इसका जो लेटेंट हीट है वो पॉजिटिव है, सेंसिबल हीट इज पॉजिटिव, ग्राउंड हीट इज नेगेटिव। सॉरी ये मैं कंफ्यूज कर गया। लेटेंट हीट का एरो जो है वो डाउनवर्ड है और एच का भी डाउनवर्ड है, विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सर, क्योंकि सर ये क्यों रेडिएशन लॉन्ग वेव नेगेटिव होगा, और ग्राउंड का नेगेटिव वहां से रिलीज हो रही है।
So this net radiation actually do work during night hours our Mars surface. अगर हम कहते हैं कि सरफेस जो है ड्राई है डे आवर्स में, फिर क्या होगा? जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है जो मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर डे आवर्स हैं और ड्राई सरफेस है तो नेट रेडिएशन क्या करेगी? वो पॉजिटिव, हद से ज्यादा पॉजिटिव होगा मतलब, पॉजिटिव क्यों होगी? और लेटेंट हीट सर बहुत ही जीरो के करीब, हाँ बिल्कुल यही होगा। लेटेंट हीट फ्लक्स इज जीरो बिकॉज देयर इज नो मॉइस्चर, तो फेज चेंज हो गई नहीं वाटर का। तो ओनली देयर आर टू ऑप्शंस फॉर नेट रेडिएशन टू डू वर्क। वन इज सेंसेबल हीट जो कि बहुत ज्यादा होगी, और ग्राउंड में भी एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो इसलिए ड्राई सरफेस के ऊपर फिर, या जब ड्राई सरफेस होगी उन एरियाज में डे आवर्स में टेम्परेचर सरफेस का भी ज्यादा होता है और एटमॉस्फेयर की भी ज्यादा होता है। इसकी एग्जांपल डेजर्ट्स, मॉइस्ट सरफेस, ह्यूमिड रीजन में आ जाए मॉइस्ट सरफेस है, तो डे आवर्स में जो एटमॉस्फेयर है वो माइल्ड होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी, सरफेस का भी माइल्ड टेम्परेचर होगा। तो ये नेट रेडिएशन जो है इस तरह है, ये बेसिकली वर्क करती है। Okay, so let's discuss the energy cycle in detail. डिटेल की बजाय जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करता हूँ, रादर डिस्कसिंग दी ऑल द डिटेल्स विद इन दी एनर्जी साइकिल। जो आप देख रहे हैं नंबर्स लिखे गए हैं। सो लेट्स अज्यूम ऑन द लेफ्ट टॉप हम देख रहे हैं 100 लिखा गया, कि 100 जो है रेडिएशन के यूनिट्स जो हैं, सोलर रेडिएशन वो सन से आ रही है। आउट ऑफ 100 यूनिट्स 47 जो यूनिट्स हैं ग्लोबली, ये ग्लोबली एवरेज हम बात करें एनर्जी साइकिल की, ग्लोबली जो है 47 यूनिट्स जो हैं वो ऑब्जॉर्ब होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थ सरफेस में कंटिनेंटल एरिया भी है, वाटर बॉडीज भी हैं। तो 100 में से 47 अब्जॉर्ब हो गए, बाकी जो है वो स्कैटर्ड हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, तो 47 जब अब्जॉर्ब होते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर, अब ये 47 यूनिट्स को एमिट बैक होना है। ठीक है, अगर ये एमिट बैक नहीं होंगे, या ये नेट रेडिएशन सॉरी ये जो नेट शॉर्ट वेव रेडिएशन जो अब्जॉर्ब हुई है, ये अगर एमिट बैक ना हो, ठीक है, और ये कुछ काम ना करे, तो क्या होगा? अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही है ना। सो टू आफ्टर कंसिडरिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये 47 यूनिट्स को जो है एमिट बैक होना है। तो फर्स्ट जो है पार्ट जो डू वर्क करता है वो नेट लॉन्ग वेव रेडिएशन है। इस 47 यूनिट्स में से जो है वो 18 यूनिट्स जो हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन की सूरत में वो बैलेंस है। और ये नेट लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है बेसिकली ये जो है बेसिकली वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि एनी मटेरियल एमिट्स रेडिएटिव एनर्जी विद द फोर्थ पावर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर। यही हमने पढ़ा है कि फोर्थ पावर ऑफ सरफेस टेम्परेचर से कोई भी मटेरियल जो है एनर्जी जो है रेडिएटिव एनर्जी एमिट करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम कहते हैं ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, जो ब्लू आपको लाइन नीचे नजर आ रही है। ड्यूरिंग डे आवर्स सन से जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन सरफेस को हीट करेगी, और सरफेस हीट होने के बाद
यहां से अपवर्ड लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट होगी अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये अपवर्ड जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन इनको हम कहते हैं। तो ये जब अपवर्ड जाती हैं तो इसका मतलब है ये फिर वो बाकी बैलेंस कि अपवर्ड से कितनी अब्जॉर्ब होगी, कितनी एस्केप होगी, व्हाटएवर जो उसका साइकिल बनता है। अब हम दो जो है बेसिकली एग्जांपल लेने लगे हैं कि अपवर्ड इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसकी कंडीशन जो है डे में अगर क्लाउड है और नाइट जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर मून है, ये क्लियर स्काई है और मून है, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन में क्लाउड है। तो दोनों सूरतों में जो है ये जो अपवर्ड इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट बैक हो रही है, इसकी वजह से डिफरेंट जो है कूलिंग का या हीटिंग का इफेक्ट होगा। जैसा कि आप लोगों ने ये बेसिकली सुना होगा, बहुत सारे लोग वो जो बात करते हैं कि जी जो क्लियर स्काई या क्लियर स्काई में मून हो, वो नाइट्स जो हैं वो ठंडी होती हैं। ये आप लोगों ने सुना है? क्लियर स्काई और मून हो तो Yes, वो sir. जो रात है वो ठंडी होती है। Yes, sir. Yes. और शायद आप लोगों ने ये भी फील किया हो, अगर क्लियर स्काई नहीं है, रात के वक्त अगर क्लाउड हैं, तो कूलिंग इफेक्ट कंपैरेटिवली लेस होता है। अगर आप बाकी कंडीशन में सेम रखूं, मींस कि समर की ही हम बात कर रहे हैं, उतना ही टेम्परेचर है, एक केस में जो है वो क्लियर स्काई आ गया, मून नाइट थी, और एक में जो है क्लाउड आ गया, बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो रिलेटिवली जो है जो क्लाउडी नाइट होगी उसमें कूलिंग इफेक्ट कम होगा। तो रेडिएटिव कूलिंग जो है वो होगी क्लियर स्काई में, और क्लाउड जो है वो क्या करते हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर जा रही होती है, क्लियर स्काई में तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही है वो आउटर स्पेस की तरफ चले जाती है, लेकिन क्लाउडी नाइट्स में क्लाउड्स जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो डाउनवर्ड एमिट करते हैं। तो जब डाउनवर्ड एमिट करते हैं तो क्या होता है, ये क्लाउड्स एक्ट करते हैं एज ए आपने एक फिनोमिना सुना होगा, कुछ बता सकते हैं? एक फिनोमिना बड़ा जो है वो बताया जाता है, बोला भी जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। चले मैं खुद बता देता हूँ ग्रीन हाउस एक इम्पैक्ट, कि क्लाउड जो है एज ए बैरियर एक्ट करेगा, तो वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर जा रही थी वो आउटर स्पेस की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि अब्जॉर्ब होकर नीचे की तरफ आ गई। तो इसका मतलब है क्लाउड के नीचे वाला एटमोस्फियर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। दैट्स व्हाई वी फील रेडिएटिव हीटिंग during cloudy nights. So that is the effect of the material which emits radiative energy with the fourth power of surface temperature during the clear sky nights or cloudy nights. तो इसलिए जो है हमें फीलिंग जो है वो क्लियर नाइट्स जिसमें मून होता है, हमारी जो स्किन्स हैं वो कूलिंग इफेक्ट, वो सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं है कि मून है तो इसलिए वो उसकी रोशनी है वो हमें कूलिंग इफेक्ट दे रही है, वो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि जो भी सरफेस है वो अर्थ सरफेस है या हमारा बॉडी का जो सरफेस है, तो हमारी बॉडी की सरफेस से जो है रेडिएटिव एनर्जी वो एमिट हो रही होती है, इसलिए हमारी बॉडी के ऊपर वो कूलिंग इफेक्ट हम फील कर रहे होते हैं। वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो हरगिज वो मून की लाइट की वजह से नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो एमिट कर रही होती है रेडिएटिव एनर्जी with the fourth power of the temperature of our body surface. That's why we feel cooling effect which is radiative cooling. और cloudy night में हमारी skins जो हैं
वो रेडिएटिव हीटिंग फील करेंगी। इसी तरह अर्थ सरफेस भी जो है वो रेडिएटिव हीटिंग फील करेंगी। ओके, सो आउट ऑफ 47 यूनिट्स 18 तो हो गए लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन की हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो सेंसिबल हीट जो है इन एडिशन टू लॉन्ग वेव रेडिएशन, वो 5 यूनिट्स जो हैं वो ग्लोबली एवरेज ये यूटिलाइज होते हैं। तो सेंसिबल हीट फ्लक्स होती है ड्यू टू दी वार्मिंग। एंड थर्ड वर्क डन बाय नेट रेडिएशन इज लेटेंट हीट, जो कि फेज चेंज है। तो 47 यूनिट्स जो हैं बेसिकली, सॉरी, आउट ऑफ 47 यूनिट्स 24 यूनिट्स जो हैं ग्लोबली एवरेज जो है लेटेंट हीट के लिए 24 यूनिट्स यूज होते हैं। So as we already discussed this warm versus cold dry air, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट कोर्स में, I'm not going in detail. Anyway, तो sensible heat जो है वो फिर बिकॉज एयर जो है बेसिकली वार्म होगी, इसका मतलब इट इज लाइटर, तो वो राइज करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। और लेटेंट हीट फ्लक्स क्या करती है? इवेपोरेशन। तो वार्म एयर भी लाइटर है और इसी तरह वेट एयर हमने लास्ट कोर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, तो वेट एयर भी लाइटर है, तो वो भी जो है अपवर्ड मूव करेगी। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जो है ये बेसिकली फिर क्या करती है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये भी इंक्रीज करती हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज होती हैं। तो ये 47 यूनिट्स जो हैं बेसिकली वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जो है उनको वो बैलेंस करते हैं 47 यूनिट्स को। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इन बैलेंस। लेकिन ये बैलेंस जो है वो वेरी कर सकता है। वो कब वेरी करेगा? जो कि हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से अगर बहुत सारी गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, अगर एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी तो जो एनर्जी बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो गैसेस जो हैं उनकी लाइफ जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स है। वो एनर्जी को, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती हैं, ऑब्जॉर्ब करने के बाद एमिट डाउनवर्ड करती हैं सरफेस की तरफ, और वो एस्केप नहीं होने देती एनर्जी को टूवर्ड्स दी आउटर स्पेस, बल्कि ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट कर रही होती हैं डाउनवर्ड। तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, and that is called global warming under changing climate, जिसका basically major source जो हम कहते हैं in addition to natural forcing is anthropogenic activities. However, if we look into the water cycle, उसको अगर हम देखें quantitatively water cycle को, तो वाटर साइकिल के जो मेजर प्रोसेसेस हैं उसमें इवेपोट्रांसपिरेशन है, प्रेसिपिटेशन है और रन ऑफ है, राइट। तो अगर हम ये राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, इवेपोरेशन ओवर द ओशन इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन जो है ओशन के ऊपर 1.19 मीटर पर ईयर है, while precipitation is 1.08. However, on the continental side, precipitation is 0.77 meter per year, while evapotranspiration is 0.5 meter per year. evapotranspiration कम है लैंड के ऊपर और प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। तो बेसिकली ये जो बैलेंस है, इसको बेसिकली बैलेंस आउट करने के लिए जो है मॉइस्चर फ्लक्स बेसिकली होता है फ्रॉम द ओशन। ओशन के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर फ्लक्स जो है वो कॉन्टिनेंटल एरिया की तरफ पहुंचता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडवेक्शन। मॉइस्चर जो है एडवेक्ट होता है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंटल एरिया टू बैलेंस दैट अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन वर्सेस इवेपोट्रांसपिरेशन ओवर द कॉन्टिनेंटल एरिया।
तो वो जो बेसिकली इन्वेक्शन प्रोसेस से जो है प्रेसिपिटेशन भी जो है ज्यादा हो जाती है और कॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर वो प्रेसिपिटेशन अमाउंट रिलेटिवली कम रहती है। वो सारे के सारे क्लाउड जो हैं वो ओशन से बनते हैं लेकिन वहां बर्स्ट नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ पार्ट एडवेक्ट होने के बाद वो कॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में गिरते हैं। तो ये बेसिकली जो है वाटर साइकिल जो है इसका कनेक्शन है एनर्जी साइकिल के साथ, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। और इसीलिए जो है क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि एनर्जी साइकिल में अगर वेरिएबिलिटी होगी तो वाटर साइकिल में भी वेरिएबिलिटी होगी। ओके, तो वेरिएबिलिटी ऑफ वाटर साइकिल की जो है ये वाली फिगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कहीं प्रीवियस लेक्चर में। ग्लोबली देखें, इंडिया के ऊपर 2005 में जो है हिस्टोरिक इवेंट था, 24 आवर में 944 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। दैट इज हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर रेनफॉल इन द कॉन्टिनेंटल रीजन। और वेरिएबिलिटी ऑफ क्लाइमेट अगर देखें, अगर हम लास्ट सेंचुरी की 1950 से 2000 तक, तो बहुत सारे एरिया पे पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। मीन प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज वेट डेज भी जो हैं बेसिकली इन एरियाज पे इंक्रीज हो रहे हैं। बट नेगेटिव साइन वाले एरिया जो है वो शो कर रहे हैं कि वेट डेज डिक्रीज हो रहे हैं। मीन रेनफॉल जो है रिलेटिवली उन एरियाज में कम है। सिंगापुर में भी इवेंट्स हैं, थाईलैंड में भी इवेंट्स हैं रिगार्डिंग द वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी। और पाकिस्तान का इवेंट जो है हमने भी ये लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, 2010 का फ्लड दैट वाज रिगार्डिंग द रशियन फॉरेस्ट फायर, जिसके बाद एक हाई जो है वो डेवलप हुई रशियन फॉरेस्ट रशियन रीजन के ऊपर बहुत हाई जो थी स्ट्रॉन्ग थी। और डिप्रेशन जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन मिड ऑफ द ट्रोपोस्फेरिक लेयर जो है वो डेवलप हुआ। तो उस लो को कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा जो है मॉइस्चर फ्लक्स जो लो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मॉइस्चर फ्लक्स जो है इंडियन ओशन से भी आया और बे ऑफ बंगाल से भी आया पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर, जिसके बाद जो है ये 2010 का जो है हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट और उसके बाद फ्लडिंग पाकिस्तान में, वो आप लोगों को आइडिया है कि सीवियर फ्लडिंग हुई। और सिर्फ ये प्रेसिपिटेशन नहीं है बल्कि ड्राउट्स के रिगार्डिंग भी कुछ इवेंट्स हैं। पाकिस्तान में 4 इयर्स का ड्राउट है। और ग्लोबली भी अगर देखें कि ड्राउट सीवियर इंडेक्स जो है PDSI, वो यही कह रहा है कि इट इज़ वेरी लाइकली कि जो है वो फ्यूचर में जो है ड्राउट्स भी इंक्रीज होंगे, फ्लडिंग भी होगी लेकिन साथ साथ ड्राउट्स भी इंक्रीज होंगे। तो इसकी रिसेंटली एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में 4 ईयर का ड्राउट था 1998 से 2002। ऑस्ट्रेलिया में जो है लास्ट ईयर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का वल्नरेबल ड्राउट कंडीशन थी। मेकॉन्ग रिवर बेसिन जो है ये ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द variability of greenhouse gases and its effect on the water cycle or the global warming. So उसके रिगार्डिंग जो है ये एक बहुत ही फेमस रिलेशन है जिसको हम कहते हैं क्लासियस क्लेपरॉन रिलेशन। सो ये क्लासियस क्लेपरॉन रिलेशन जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो ये बेसिकली रिलेशन जो है वो आप लाइन देख रहे हैं, कर्व लाइन, ये इसके ऊपर रिलेशन है। तो जब भी एयर पार्सल जो है इस लाइन के ऊपर होगा तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन में है, और उस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मीन कि वो वाटर वेपर जो है उस एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाएगा। मींस कि फेज चेंज, वाटर वेपर से कंडेंस होके क्लाउड फॉर्मेशन होगी। तो ये बेसिकली CC रिलेशनशिप जो है
ये रिप्रेजेंट करता है फिनोमेना ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और एट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन। सो ये ब्लू डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कहते हैं कि ये एक एयर पार्सल है इस कंडीशन के ऊपर। तो इस कंडीशन के ऊपर जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज अराउंड 20 m बार, और इसके ऊपर जो टेम्परेचर है इट इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस विच इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है उस एयर पार्सल में जितने भी वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करेंगे। However, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये एयर पार्सल जो है ये मूव करता है, ये जो कि एरो है ये इस कंडीशन में आ जाता है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 18 डिग्री टू हम कहते हैं 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है वो जो वेपर प्रेशर है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर नहीं है बल्कि वो 20 मिली बार ही रहता है। ठीक है, वेपर प्रेशर 20 मिली बार है और टेम्परेचर जो है वो 18 से 28 हो गया। तो इस कंडीशन के ऊपर जब एयर पार्सल जो कि रेड डॉट से शो किया गया है इस कंडीशन पे आता है, मींस कि वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन के ऊपर नहीं है, तो कंडेंसेशन नहीं होगी। जितने भी वाटर वेपर उस एयर पार्सल में हैं वो कंडेंस नहीं होंगे, मींस क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है फिजिकली एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जैसा हम कहते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है ये कंडीशन हो कि वो एयर पार्सल में या एटमॉस्फेयर में सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन अटेन ना हो। तो जब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन अटेन नहीं होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि क्लाउड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि इस टिपिकल एग्जांपल में मैंने शो किया कि 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 मिली बार पे क्लाउड फॉर्मेशन है। However, at 28 degree Celsius with vapor pressure of 20 millibar, there is no cloud formation. Cloud formation हुई नहीं, डिक्रीज हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग जब हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि क्लाउड फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई है, वो हरगिज मकसद नहीं है। तो क्लाउड फॉर्मेशन कब इंक्रीज होगी इन ग्लोबल वार्मिंग? जब ये सैचुरेटेड जो वेपर प्रेशर का जो डेफिसिट है फ्रॉम सैचुरेशन, जिसको ES माइनस E से रिप्रेजेंट किया गया है, वो डेफिसिट जो है कंपनसेट हो। मींस कि वो रेड वाला बार जो है एयर पार्सल वो इधर से मूव होके वो बेसिकली ये इधर तक पहुंचे। सॉरी, ये मुझे एरो भी लगाना चाहिए था। सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये जो है ना मिस्टेक हो गई। ओके, तो बेसिकली जो है ये जब तक ये डेफिसिट जो है फुलफिल नहीं होगा और एयर पार्सल जो है इसके अंदर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उस टेम्परेचर के ऊपर 28 डिग्री के ऊपर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है कि और मॉइस्चर आ सकता है। तो जब तक वो डेफिसिट जो है द वार्मर द एटमॉस्फेयर मोर वाटर वेपर इट कैन होल्ड, तो वो डेफिसिट जब तक फुलफिल नहीं होगा मींस के दोबारा एयर पार्सल
वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन के ऊपर नहीं अटेन होगा, तब तक क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ये है जनरली स्पीकिंग कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है जनरली, लेकिन कुछ एरियाज पे इंक्रीज है। वो किन एरिया पे इंक्रीज है? जहां वाटर अवेलेबिलिटी फॉर फेज चेंज वो अनलिमिटेड है, लाइक वाटर बॉडीज। ठीक है, वहां अगर अनलिमिटेड है, वहां जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन अटेन हो जाती है, आफ्टर सम टाइम क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन स्पेशली जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, वहां वाटर वेपर जो है, सॉरी, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वो लिमिटेड है, अवेलेबल, अनलिमिटेड नहीं है। तो वो जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होती है वो फुलफिल नहीं करती सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कंडीशन को, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन स्पेशली जो है कॉन्टिनेंटल एरिया पे डिक्रीज हो रही है। So that is the effect of global warming, which I am going to explain in this diagram. Temperature increase का क्या impact है? Saturated vapor pressure increase हो रहा है, जैसा कि हमने previous figure में देखा है कि temperature increase होगा तो saturated vapor pressure increase होगा। However, cloud formation जो है decrease हो रही है उस केस में। So let's take an example. Sun से जो है short wave radiation आई और इंफ्रारेड आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो एमिट बैक हुई, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ये जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब होने के बाद ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ सरफेस की तरफ आएंगी, तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसा कि कलर में भी आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ग्रीन हाउस गैसेस ने अब्जॉर्ब की आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, एमिट बैक हुई डाउनवर्ड, और सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कन्वेक्शन प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है। ठीक है, उसमें जो है कन्वेक्शन वो ड्राई भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है। अगर ड्राई कन्वेक्शन है तो इसका मतलब है सिर्फ सेंसेबल हीट है। अगर वेट कन्वेक्शन है तो वेट कन्वेक्शन का मतलब है कि फेज चेंज मींस लेटेंट हीट फ्लक्स है। तो जब कन्वेक्शन प्रोसेस तेज हो रहा है तो इसका मतलब है वो फास्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो भी थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ सरफेस नहीं है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद जो है राइजिंग एयर जो है, जो कि वार्म है, लाइटर है, वो ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद कूल होने के बाद जो कि डाउनवर्ड एरो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं ओवल शेप के ऊपर, वो डाउनवर्ड एरो शो करें कि जब वो कूल हो जाती है एयर ऊपर जाने के बाद हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो कूलर एयर इज हैवियर देन द वार्म एयर, तो वो डाउनवर्ड कहीं सबसाइड हो रही है, तो वो सराउंडिंग रीजन में सबसाइड हो रही है। तो ये पूरा एक साइकिल जो है इन द ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गया है, कन्वेक्शन फास्ट हो गया है। इसीलिए जो है हमें एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक हैवी रेनफॉल के इवेंट्स जो हैं उनमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो ज़्यादा जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज कंपेयर टू 2-3 डेकेड्स बिफोर। और इसका इम्पैक्ट क्या है? जब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो फ्लड की पीक्स वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो हमारी जो बेसिकली जो फ्लड एम्बैंकमेंट्स हैं या अगर डैम में स्पिलवे कैपेसिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि उस पीक को अब्जॉर्ब कर सके, प्लस अगर अर्बन एरिया में फ्लडिंग के फिनोमेना जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो जब फ्लड पीक इंक्रीज हो गई है तो अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि स्टॉर्म ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वो पास्ट के किसी इवेंट के ऊपर डिज़ाइन की गई थी, वो सफिशिएंट नहीं रही। तो वो बेसिकली हमें रीमॉडल करने की ज़रूरत है कि उस सिस्टम को फिर दोबारा जो है मॉडल करने की ज़रूरत है और उसको दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है ड्यू टू जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फिनोमेना है उसका इम्पैक्ट जो है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये तो एविडेंस है हमारी ऑब्जर्वेशन से भी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज हो रही है तो फ्लडिंग मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फिर इम्पैक्ट स्टडीज जो हैं वो जो भी आप जिस एरिया में करना चाहते हैं वो आप
कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IPCC assessment report 4 and 5, it is very likely that heavy precipitation events will continue to become more frequent. frequency increase होगी है, जैसा कि टॉप वाली फिगर बी में आप देख रहे हैं। प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो हैं उनकी स्टैंडर्ड एविएशन वो 0 से ज़्यादा है, और इट इज़ वेरी लाइकली, वी आर मोर देन 90% कॉन्फिडेंट कि प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और ऑन दी अदर हैंड साइड प्रेसिपिटेशन फ्रीक्वेंसी की भी बात है, होवेवर IPCC ये भी कहता है इट इज लाइकली दैट एरिया अफेक्टेड बाय ड्राउट इंक्रीजेस। तो एरिया अफेक्टेड बाय ड्राउट जो है वो लाइकली बताया गया है, विच इज मोर देन 67%, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो इवेंट्स इंक्रीज हुए हैं, उसके साथ साथ ड्राउट्स भी, ड्राई एरिया भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या ड्राउट्स भी जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और उसके लिए जो है मैंने ये लास्ट फिगर में एनिमेशन बता दी है कि जब हम कन्वेक्शन प्रोसेस को तेज करते हैं तो जहाँ कन्वेक्शन हो रही है उन एरियाज में हैवी रेनफॉल हो रही है, लेकिन उनके सराउंडिंग रीजन में जो है वो जब कोल्ड एयर डिसेंड होती है, मीन डाउनवर्ड मूव करती है, तो उन एरियाज के ऊपर जो है वो ड्राई कंडीशन है। So that's all about today's topic. I hope आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा अबाउट दी ग्रीन हाउस गैसेज जो हमने बेसिकली कि उसका इम्पैक्ट क्या है और उसकी फिजिकल साइंस क्या है, कि वो बेसिकली किस तरह जो है एनर्जी साइकिल और उसके साथ वाटर साइकिल को चेंज कर रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर प्रेसिपिटेशन और जो ड्राउट्स हैं वो क्लाइमेट मॉडल जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टॉक टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क मी। सर एक सवाल है सर। तो सर हम लोग कहीं ये भी तो कह सकते हैं कि सर कि क्लाइमेट चेंज इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये फायदा तो एक तरफ प्रेसिपिटेशन मिल रहे हैं, जहाँ पहले ड्राउट होता था तो वहाँ मुझे एक फायदा भी हो रहा है। चलो दूसरी दुनिया को मैं छोड़ दूंगा कि वहाँ ड्राउट हो रहा हो, लेकिन अपने इलाके में तो बारिश हो रही है। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली जो है एक चीज़ मैं मिस कर गया कि जो प्रेसिपिटेशन के फिनोमिना थे ना, जो अगर हम 2-3 डेकेड्स पहले देखें, फिजिकली मैं तो ऑलमोस्ट आई एम 50, तो 30 साल या 40 साल पहले की मैं बात करता हूँ कि जब प्रेसिपिटेशन होती थी वो बहुत वाइड स्प्रेड होती थी, ठीक है। अब जो प्रेसिपिटेशन फिनोमेना हो गए हैं वो लोकलाइज्ड हैं, छोटे एरिया के ऊपर होती है, लेकिन प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई छोटे एरिया के ऊपर। और 30 इयर्स पहले ये था कि प्रेसिपिटेशन जो है बहुत बड़े एरिया के ऊपर होती थी लेकिन इंटेंसिटी कम होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब है जब लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन इवेंट हो गए तो एरिया अंडर ड्राई कंडीशन जो है वो वाइडर होते जा रहे हैं, तो विच इज नॉट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका मतलब है वाटर की जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है विद इन नो टाइम, शॉर्ट टाइम में लोकलाइज्ड रीजन में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, लेकिन कुछ एरियाज में पहले जहाँ कुछ बारिश होती थी उन एरियाज में बारिश होना ही बहुत कम होना शुरू हो गई है, ठीक है, या नहीं हो रही। तो बेसिकली वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो गई है, वो या वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी जिसको हम कहते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। I hope I answered your question. बिल्कुल सर, थैंक यू सर। Any other question? सर मेरा क्वेश्चन है सर, बेसिकली आपने बताया कि सर लेटेंट हीट जो है ये बेसिकली यूज हो रही है फेज चेंज में,
मतलब वाटर ऑपरेट हो जाता है। सर ये बेसिकली आइस को मेल्ट करने में यूज नहीं हो सकती थी, मतलब जो आइस है सॉलिड फॉर्म में वाटर है उसको मेल्टिंग में भी यूज हो सकती है सर। लेटेंट हीट, आप लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। सर सर लेटेंट हीट इज नथिंग टू डू विद द स्नो मेल्ट। लेटेंट हीट ये वो वाली हीट है जो बेसिकली हम वाटर बॉडी में कहते हैं कि जब सोलर रेडिएशन आई तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एस्केप हो गए वाटर बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ऐसे ही है। तो वो वाटर वेपर्स कैसे एस्केप हुए कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि वो वाटर बॉडी को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ गए। तो वो जो वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल जो एस्केप हुआ वाटर बॉडी से, वो अपने साथ एनर्जी लेके गया है या हीट लेके गया है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसकी एग्जांपल बॉइल्ड वाटर, जो स्टीम है, स्टीम गर्म होती है कि नहीं, कि स्टीम ठंडी होती है बॉइलिंग वाटर के ऊपर। आपसे ही क्वेश्चन है कि स्टीम जो गर्म है होती गर्म होती है ना, तो इसका मतलब है वो है। स्टीम जो है वाटर वेपर है, तो उसके साथ हीट भी है। वो जो हीट है उसके साथ, दैट इज लेटेंट हीट। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द स्नो मेल्ट। वो तो बेसिकली फेज चेंज के लिए हीट यूज हुई है, जिसको हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। तो उसको Yes, स्नो कवर से, स्नो कवर जो है वो कैसे मेल्ट होता है कि जो बेसिकली सोलर रेडिएशन, जो मैंने एल्बिडो की बात की थी, ठीक है, एल्बिडो जो है स्नो कवर की, वो ऑलमोस्ट जो है वो हम कहते हैं कि 90% है। तो इसका मतलब 10% अगर उसमें हीट अब्जॉर्ब हो गई स्नो कवर में, वो जो अब्जॉर्ब हुई है उसने स्नो को मेल्ट करना है। या कौन सी एनर्जी जो या हीट जो लेटेंट हीट है, कि जो एटमॉस्फेयर में, सॉरी, जो सेंसिबल हीट है एटमॉस्फेयर में, सेंसिबल हीट है, yes ठीक sir. है, कन्वेक्शन। तो एटमॉस्फेयर का अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो एटमॉस्फेयर से भी कुछ जो है पार्ट स्नो में हीट के जो सॉरी एटमॉस्फेयर में जो सेंसेबल हीट है, या कुछ पार्ट लेटेंट हीट रिलीज होती है बहुत ही ऊपर जाके, जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है उस वक्त रिलीज होती है। लेकिन सेंसेबल हीट तो जो है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में रहती है, वो लो से मीडियम हाई ट्रोपोस्फियर में भी रहती है। तो लो ट्रोपोस्फियर में जो सेंसिबल हीट होती है उसकी वजह से भी स्नो कवर में कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है, जो कि स्नो मेल्टिंग प्रोसेस को तेज करती है। इन एडिशन टू दैट, स्नो कवर के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल आ जाएं, ठीक है, शायद ये आपने टर्म सुनी होगी कि डस्ट ब्लोन जो है, या जो है कोल पार्टिकल्स जो हैं वो स्नो के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं पाकिस्तान में। मे बी आपने कहीं आर्टिकल में पढ़ा हो, आई रेड अबाउट दैट। तो ये जब ग्लेशियर रीजन में डस्ट या कार्बन डिपॉजिट हो रही होती है, तो कार्बन या डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं कि उसकी एल्बिडो डिक्रीज करते हैं, ज्यादा अब्जॉर्ब करती है सोलर इंसुलेशन उस वक्त स्नो, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो डस्ट है और कार्बन डिपॉजिट है। तो वो जो है कार्बन डिपॉजिट और डस्ट जब अब्जॉर्ब करेगी तो स्नो मेल्ट प्रोसेस तेज हो जाएगा, इन एडिशन टू सेंसेबल हीट जो कि स्नो मेल्ट को आर्गुमेंट कर सकती है। बट लेटेंट हीट फ्लक्स जो है वो आर्गुमेंट नहीं करती। उसका सिर्फ लेटेंट हीट फ्लक्स इज only to do with the phase change of water। वो फेज चेंज है वाटर से वाटर वेपर की तरफ है, या वाटर वेपर से वाटर की तरफ बैकवर्ड भी हो सकता है। तो दोनों केस में लेटेंट हीट है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। Right sir. Okay. Thank you. Okay, any other question?
No question? Okay, thank you very much students. Inshallah see you next week. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अटेंडेंस मैंने आप लोगों की मार्क कर ली है. Thank you. See you अल्लाह next हाफिज़ सर. week. Thank you Allah so much. Hafiz. सर